for data register. Okay, so we will write first in our data in our control register. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल रजिस्टर में राइट करेंगे. तो कंट्रोल रजिस्टर में आएगा, कंट्रोल रजिस्टर इज ऑफ 16 बिट. सो उसमें पहले हमको क्या डिजाइन करना होगा, फर्स्ट वी नीड टू डिजाइन मोड वर्ड एंड देन वी नीड टू डिजाइन कमांड वर्ड. सो अब मोड वर्ड डिजाइन करो आप, D0 टू D7. उसका फॉर्मेट क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं मैंने कि आपको कैसे इनिशियलाइज करना है 8251 को. सो स्पेसिफाई द इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शंस एंड द स्टेटस वर्ड टू ट्रांसमिट कैरेक्टर विथ फॉलोइंग पैरामीटर्स. तो ये पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं. सो क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज गिवन, that is a 153.6 kilohertz. That is a transmitter clock frequency. And this is baud rate, that is 9600, that is a baud rate. Now what is the character length? 7 bit, 2 stop bits, and no parity check. So according to this all instruction, you can design the mode word. Based on this, you should be able to design the mode word. आपको मोड वर्ड डिजाइन करना करके आप कैसे करोगे डिजाइन, ये आपको पता चलना चाहिए. सो मोड वर्ड का डिजाइनिंग हम पहले स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी स्टडी द डिजाइनिंग ऑफ मोड वर्ड. सो मोड वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, सो दिस इज फॉर मोड वर्ड. सो D0 and D1, what should be the D0 and D1 according to the data given? 153.6, that is your transmitting clock, and baud rate that is given, that is 9600. So इसको आप कितने नंबर से डिवाइड करोगे so that you will get this 9600. ये आपकी जो ट्रांसमीटर क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 153.6, इसको आप कितने से डिवाइड करोगे सो आपको इतना baud rate मिलेगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू डिसाइड. सो आपका यहाँ पे D0, सो इसका मीनिंग 16, आपका फैक्टर क्या आया 16. सो 16 करना है तो यहाँ पे आपको 16 करना है. 16 के लिए क्या आएगा 10. सो इसकी वैल्यू क्या होगी 10. सो दिस इज 10. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज 10. ओके, देन हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू सेंड. यहाँ पे कैरेक्टर के कितने दिए हुए हैं, हाउ मेनी कैरेक्टर यू वांट टू यूज, 7 कैरेक्टर्स. सो 7. सो आपको याद रखना होगा, ये सब कुछ आपको याद रखना होगा. यू नीड टू रिमेम्बर दिस. 5, 6, 7 and 8, these are the 4 options. So 5 होगा तो 0 0, 6 होगा तो 0 1, 7 होगा तो 1 0 and 8 होगा तो 1 1. So यहाँ पे 7 है तो क्या आएगा 1 0. So this is 1 0. Then no parity. So 0 0. And how many stop bits you want to use? 1 1. 2 stop bits. So this is our data. What is data? That is a CA. Hexadecimal में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे CA. So this is our mode word. Okay. Then command word. Now what is the command word? Command word क्या होगा, हमको यहाँ पे इसको कैसे यूज करना है. You want to use it as a transmitter. So अगर इसको एज अ ट्रांसमीटर यूज करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कमांड वर्ड में, this bit we will set 1, all other bits we will specify 0. So ultimately this will be 0 1. So this you can specify all other 0 and this will be 1. Or else if you want to reset all other previous flags को भी reset करना है तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो. So either 1 1 or 0 1, both are okay. आप यहाँ पे 1 1 करोगे तो भी चलेगा, 0 1 करोगे तो भी चलेगा. Ultimately ये bit 1 होना चाहिए, that is our condition. So that is your command word because we want to use this 8251 as a transmitter. Okay, now so ये हो गई हमारे mode word and this is our command word. So what will be our first two instruction? So our starting instruction MVI-C, MVI-A, CA. So ये पहले हम mode word load करेंगे. Out it to control register FF. Then we will load this 1 1. So MVI-A 1 1.
and now tick to FF. So this initialization has been done. यहाँ पर आपका इनिशियलाइजेशन हो गया. अब आपको डेटा ट्रांसमिट करना है. Now we need to transmit the data from our transmitter. So that you need to write instructions to initialize this 8251 to read the status and set a loop until a transmitter is ready. जब तक ट्रांसमीटर रेडी नहीं होता तब तक आप वहां पे लूप में रहोगे. जब ट्रांसमीटर रेडी होगा तो हम डेटा सेंड कर देंगे. सो आपको कैसे पता चलेगा whether the transmitter is ready or not? How we will get this information whether the transmitter is ready or not? From which signal, from which pin, or from which status bit? D0, because D0 will indicate over here, D0 will indicate whether transmitter is ready or not. So हम यहाँ पे ये बिट चेक करेंगे. So इसके लिए आपको क्या करना होगा? First you need to read the status word. So status word को read करने के लिए आपको क्या करना होगा? In FFH. So आपको accumulator में कुछ डेटा मिलेगा. You will get something inside accumulator. So accumulator में जो मिलेगा तो यहाँ पे ये बिट 1 है या नहीं है वो आपको ऑब्जर्व करना है. So we will perform OR operation. So that is we will perform masking operation that we are doing over here. So in FFH, then we will check ANI with 01 because we want to check this bit only. क्या ये bit 1 है या नहीं है? So if this bit is 1, then your transmitter is ready. If this bit is 0, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0. So we will continuously wait in this particular loop. Otherwise, we will go for our next instruction, and next instruction will be any such instruction which will read or write data. वो मैं next example में आपको explain करूंगा. First of all, make this clear. What are the instructions? How to initialize the status word? How to initialize command word? How to initialize mode word? And how to check whether the transmitter is ready or not. यहाँ तक clear हो गया? Is it clear? डिटेल प्रोग्राम में अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको डिटेल प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ तक से मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया that designing of this mode word, command word and status word. Is it clear? Only one student has replied. Why all other are not replying? Are you not getting or what? Okay. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. So same thing, same interfacing diagram we will use. So we will consider that this is our CRT terminal. ये हमारा CRT terminal है. यहाँ पे ये जो connected है serially, वो हमारा CRT terminal है. And we want to check, we want to send this data. मेमोरी में हमारे पास एक मेमोरी है. मेमोरी में हमने डेटा स्टोर किया हुआ है. सो कौन सा डेटा स्टोर किया हुआ है? सो डेटा विच इज स्टोर, a message is stored as a ASCII character without any parity in memory location. Memory location from some XX70. So यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन है, यहाँ से हमने जो डेटा स्टोर किया हुआ है. सो यहाँ पे एक्चुअली स्टोर किया हुआ है हेलो, HELL, ऐसा हेलो मैसेज यहाँ पे स्टोर किया हुआ है. तो ये पहले यहाँ पे H लोड होगा, H यहाँ पे आएगा, फिर H यहाँ पे सीरियली सेंड होगा और फिर यहाँ पे H आपको डिस्प्ले होगा. जब H यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा तब ये ट्रांसमीटर वापस यहाँ पे रेडी होगा, फिर इट विल सेंड E. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल सेंड डेटा सीरियली डेटा सेंड करेंगे यहाँ पे. ओके. सो द मैसेज अब यहाँ पे ये जो स्टोर किया हुआ है मेमोरी में, कौन से लोकेशन से स्टोर किया हुआ है? कोई भी. आप यहाँ पे XX70 कंसीडर कर सकते हो. सो XX70 का मीनिंग क्या है? लेट्स से दैट कंसीडर इट 5770, जस्ट फॉर एग्जांपल. ये लोकेशन पे हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है. सो वहां पे पहले क्या स्टोर किया हुआ है? द मैसेज स्पेसिफाइज द नंबर ट्रांसमिटेड एज द फर्स्ट बाइट. सो यहाँ पे जो पहला बाइट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? हाउ मेनी बाइट्स वी वांट टू ट्रांसमिट. सपोज HELLO. सो 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे पहला लोकेशन पे 5 स्टोर किया हुआ है. बाकी आपका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे कैरेक्टर के हेक्साडेसिमल वैल्यू
ASCII में वो स्टोर किए हुए हैं, ASCII values in hexadecimal is stored over here. So we'll read it one by one. Program will be same, interfacing will be same. जो previous interfacing study किया था वो as it is. Start, we will initialize stack pointers, counters, initialize 8251, and then we will read the status word. Once the status, we will read the status word. Once your transmitter is ready, so we will read the data from memory and send the character for transmitting. अगर आपका transmitter ready नहीं होगा, so we will wait over here. So we will read the status and we will wait again. So is the transmitter busy? So if it is busy, then we will wait over there. Okay. So once the last character is completed, that will be end of your program. Okay. So for right now, this is initialization of stack pointer and HL pointer. पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैक पॉइंटर, इनिशियलाइजेशन ऑफ HL पॉइंटर. सो HL पॉइंटर ये हमारा मेमोरी लोकेशन है. दिस इज अवर मेमोरी. मेमोरी में यहाँ पे स्टोर किया हुआ है XX70 पे 8 suppose. So this is 8 character we want to transfer. What are the 8 characters? HELLO, then exclamatory sign, then carriage return and line feed. So उसकी सभी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर है. 48, 45, 4C, 4C, 4F, 21, 0D, 0 है. So these locations are already, this information are already stored in our this memory, and we will read one by one and send this data serially. So उसके लिए हम HL pointer को initialize करेंगे. So we will initialize this HL pointer. So HL pointer is pointing over here. This is our HL pointer right now. Okay. Now, so we will read this data into counter C. So यहाँ पे जो होगा वो आपका क्या consider होगा? This will be your counter. So we will initialize C with 8. Okay. C की वैल्यू 8 से इनिशियलाइज होगी. नाउ फॉरगेट अबाउट दिस फ्यू इंस्ट्रक्शन. यहाँ तक की जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप भूल जाओ. ये मैं वापस आता हूँ. यहाँ ये जो इंस्ट्रक्शन है, फॉरगेट अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन राइट नाउ. कम टू दिस इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली. MVIA-CA out it to FF, MVIA-11 out it to FF. यहाँ से स्टार्ट करो आप. अभी यहाँ से आप देखो. So what are these 4 instruction? Initialization of 8251. First we have written mode word, जो previous मैंने example आपको explain किया था वही mode word, and then we have initialize command word. Mode word and command word we have initialized over here. Then we are checking. We are in from FF ANI with 01. जो previous program था वही है, ये वही है. In FF ANI with 01 and JZ status. So up to this it is the same. अब यहाँ से आगे अगर आपका ट्रांसमीटर रेडी है तो हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे. सो व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन? इंक्रीमेंट योर HL pointer. So HL pointer will now pointing to this location. लोड दिस डेटा. सो ये डेटा आएगा आपकी एक्यूमुलेटर में. सो एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा? H रजिस्टर H will be there and out it to the data register. So ये आप 8251 को ट्रांसमिट कर दोगे. फिर 8251 ये H को सीरियली सेंड करेगा. इसको सीरियली सेंड करने का टास्क किसका होगा? 8251 का. 8251 will manage that serial transmission. So we will send it to the 8251. So 8251 के डेटा रजिस्टर को हम ये सेंड कर देंगे. FE is the address for the data register of 8251. So once this H is sent, now decrement the counter. So counter एक decrement कर देंगे. So counter will become 7 now. So counter जो हमने C में स्टोर किया था, so वो हो जाएगा 7 and jump it to status. वापस यहाँ पे आएंगे. यहाँ पे jump status चेक करेंगे कि आपका ट्रांसमीटर रेडी है. तो अगर उसने पूरा H सेंड नहीं कर दिया होगा, इफ इट इज स्टिल सेंडिंग H सीरियली, क्योंकि डेटा हमको सीरियली सेंड करना है, तो सीरियली सेंड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा.
जब तक वो पूरा का पूरा एच सेंड नहीं हो जाता तब तक वो हम ये लूप में वेट करेंगे. सो वंस द data will be sent serially, we will take the next data and we will send it to 8251. So this is how we can read the data from memory and send it to 8251. 8251 will send it serially. Okay. So this is what you need to do for transmitter. Transmitter के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये steps याद रखने होंगे. You need to remember it. You need to initialize 8251. You need to check the status and then we will do our task. Okay. Now what are these four instructions? ये जो instructions मैंने अभी आपको बोले थे वो क्या है? So these four instructions are nothing, but it is just for resetting 8251. 8251 को reset करने के लिए instruction है. And if you don't write it like this, आप ऐसे नहीं लिखोगे. Suppose ये क्या कर रहे हैं? If you will observe it over here, so MVI is 00, then out FF. So mode 1 में आप क्या लिख रहे हो? FF. FF आपके कंट्रोल रजिस्टर में आपने मोड वर्ड क्या स्पेसिफाई किया? 00. सेम वे यू स्पेसिफाई कमांड वर्ड एज अ 00 also. And then this third out instruction वो यहाँ पे 00 स्पेसिफाई करेगी and this will specify 40 over here. So अगर आप यहाँ पे 40 ऑब्जर्व करोगे so ये क्या है? 0010. So यहाँ पे 1 है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? What is the interpretation of this 1? If you will check the command word में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे so that is internal reset. Internal reset करेंगे हम. दिस इज 0100. सो ये इंटरनली रीसेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? 40. So if you don't write it like this also, if you will write it only 2 times, आप ये इतना लिखोगे तो भी चलेगा. If you will write it like this, MVIA 00 out it to FF and then MVI A 40 and out it to FF, then also it will do the same thing. Are you getting this? So this is for resetting. This is for resetting your 8251 and initializing re internally reset करने के लिए. आप यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ एक ही बार लिखोगे तो नहीं चलेगा. If you will just write directly like this, MVIA 40 and out it to FF, आप इसकी जगह पे सिर्फ ये एक इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? Why it will be not work? Why it will not work? क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही बार लिखोगे तो वो सिर्फ क्या इनिशियलाइज करेगा? इट विल जस्ट इनिशियलाइज योर मोड वर्ड. इट विल नॉट चेंज योर कमांड वर्ड. वो सिर्फ मोड वर्ड को चेंज करेगा, कमांड वर्ड को चेंज नहीं करेगा. आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? Yes or no? Okay, so this is all about this 8251 and programming of 8251. You need to practice some examples which is given in our assignment में मैंने इसके थोड़े बहुत examples दिए हुए हैं. So you need to practice it. Practice करना होगा आपको. Okay. So next, our lab session. Let me start this lab session. Practical related to this. So ninth experiment. Our ninth experiment is there related to this 8251. If you will open the lab manual, अगर आपके पास है lab manual तो आप एक बार open करो. उसमें experiment number 9 है. Yes.
Look at this. Experiment number 9. Serially transmit and receive data between two kits. So ये जो हमारी kit है, this is our kit, and over here, this is our serial port. It is controlled by 8251. So यहाँ पे 8251 है. This is our 8251. Just a minute. So this is our 8251 and this is our serial port. So we will connect such two 8251, eight to these two devices via this. So मैं ये एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे रन करके बताऊंगा. ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा यहाँ पे. Okay. So, but before we will start, you need to understand some parameters over here. So what are the specifications that is given? So crystal frequency over here is 6.144 megahertz. Baud rate, that is 1200. Data bits, that is 8-bit data. No parity. Stop bit. So what will be the mode? यहाँ पे आपका mode क्या होगा? If you will consider it over here. So based on this, you need to design ये based on this parameter. You can design the mode word. आप mode word design कर सकते हो. What is the value in mode word? Mode word के लिए आपकी value क्या आएगी? Give me the mode word. If crystal frequency is this, baud rate is this, data bit is 8, 2 stop bit, no parity bit, then what will be your mode word? Mode word क्या आएगा? I want answer from all of you, not only from one student. What will be the mode word? फॉर्मेट आपको अगर देखना है तो यहाँ पे है, मेरे पास फॉर्मेट है. लेट मी शो दैट फॉर्मेट अगेन फॉर यू. So this is a format. This is a format for our answer me, all of you, please answer me. I want answer from you. Yes, so answer is CE. So our mode word will be CE. Mode word होगा वो क्या होगा? CE होगा. Okay. So वो कैलकुलेशन अब आपको पता चल गई. Okay. Now over here I want to explain you something, that counter 1 of 8253 is used to generate the necessary transmitter and receiver clock for 8251. तो ये जो किट है उसमें कैसे कनेक्टेड है, हाउ इट इज कनेक्टेड? सो इट इज कनेक्टेड लाइक दिस. ये जो 8253 है, दिस इज अवर 8253 और 8254. you can say that 8253 and 8254 both are operating, operation of both are same. So इसमें क्या होता है हमारे पास? We are having 3 timer. So out of this 3 timer counter, one of the counter will use to generate the clock. So कौन सा हम यहाँ पे use कर रहे हैं? So counter 1 is used to design this transmitting and receiving clock for this 8251. ये जो 8251 है यहाँ पे, इसकी क्लॉक ये जो है वो किसके थ्रू कनेक्ट होती है? सो इट इज कंट्रोल बाय काउंटर 1 of 8253.
सो 8253 को अब आप सिंपल ऐसा अंडरस्टैंड करो कि आपके पास एक 8253 है, दिस इज वन 8253, उसका जो आउटपुट है वो आप एज अ क्लॉक यूज कर रहे हो 8251 में। सो ये क्लॉक है। सो कौन सा आउटपुट? आउटपुट वन। कौन सा काउंटर? काउंटर वन। सो आपको 8253 को कौन से मोड में इनिशियलाइज करना होगा इफ यू वांट टू यूज इट्स आउटपुट एज अ clock, then in which mode you have to initialize your 8253 or 8254? 8253 and 54 both are operating in the same mode, same way. Yes. So you need to initialize it in mode 3. Are you getting this? Mode 3 में इसको आपको initialize करना होगा. You need to initialize it for mode 3. So counter 1 को 8253 के counter 1 को आपको mode 3 में initialize करना होगा. So we need to initialize it in mode 3. And the processor clock out is divided by 2 and given a clock as a count 8253. So processor की जो clock है is divided by 2 and given to the clock input of a counter 1. So वो मैं आपको यहाँ पे नीचे explain कर रहा हूँ. So how we need to find out, हमको कैसे find करना होगा? So अब जो की frequency है वो क्या है? बता रहा हूँ. Yes, you need to specify counter 1. So read write. अब आपको 16 बिट का डेटा लोड करना होगा या 8 बिट का डेटा लोड करना होगा. सो व्हाट इज द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी? क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज गिवन 6.14144. उसको डिवाइड बाय 2 करोगे into 10⁶. So that is your frequency for counter 1 input frequency 8253 की जो क्लॉक, इसको जो क्लॉक मिल रही है, क्लॉक 1, गेट 1 एंड आउट 1. सो आउट 1 में हमको आउट 1 को हमको एज अ क्लॉक यूज करना है. सो ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? सो दैट वी नीड टू स्पेसिफाइड. ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे. एंड यहाँ पे जो इनपुट क्लॉक मिल रही है वो क्या मिल रही है? सो दैट इनपुट क्लॉक इज लाइक दिस. क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है, इफ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज 6.144, then our whole kit frequency is 3.02, and if you will divide it 3.02 by 2, so that is a frequency for this clock. So ये clock की frequency आपको क्या मिली? 1.536 megahertz. So this is 1.536 megahertz. It is little bit difficult, but just for understanding purpose I am explaining you. एग्जाम में मैं ये डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करूंगा. अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर विच इज देयर इन अवर लैब. लैब में जो ये किट है उसमें इंटरनली ये ऐसे कनेक्टेड है. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट. अदरवाइज फॉर exam purpose or for calculation purpose I will directly give it to you. Okay, so this is a clock frequency which is given over here 1.536 megahertz. So यहाँ पे इन 8253 की ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी है. अब आपको बोर्ड रेट क्या चाहिए? सो बोर्ड रेट चाहिए आपको 1200 multiply by 16. So that therefore count value. So what should be the count value? आपकी count की value क्या होनी चाहिए? So therefore count value should be, what should be the count value? आप count value क्या specify करोगे? So count value कैसे मिलेगी? Clock divided by input clock of 8253 divided by output clock frequency. आपको जो out में चाहिए जो उसकी frequency. So that is this. So आपको 8253 को इनिशियलाइज करना होगा. You need to initialize this 8253 with which value? 50 value. नोट इट डाउन. ये सब पॉइंट आप नोट डाउन करते जाओगे तो आपको पूरा प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा. व्हाट आर द स्टेप्स? यू नीड टू नोट इट डाउन. कैसे हम ये फॉलो कर रहे हैं, अंडरस्टैंड इट केयरफुली. सॉरी.
look at over here. Once again I'm explaining you why we need to do this. हमको क्या करना है, सीरियली डेटा ट्रांसमिट करना है, सीरियल 8251 को यूज करना है. You want to use this 8251, बट 8251 को सेंड, उसको अगर ट्रांसमीटर या रिसीवर यूज करना होगा तो आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमीटर क्लॉक एज वेल एज रिसीवर क्लॉक जनरेट करनी होगी. तो ये जो किट है हमारी, इन दिस पर्टिकुलर किट, ये जो किट है उसमें 8251 के जो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग क्लॉक पे क्या कनेक्टेड है. सो इट इज जनरेटेड फ्रॉम 8253. तो पहले हमको 8253 को प्रोग्रामिंग करना होगा, फिर हम 8251 का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी नीड टू प्रोग्राम 8253. उसका कौन सा काउंटर, काउंटर 1. So counter 1 of 8253 is used to generate the necessary transmitting and receiving clock. So first we need to program 8253 and then we need to program 8251. फिर हम 8251 को प्रोग्रामिंग करेंगे. ओके, सो 8253 के लिए आपको कौन सा काउंटर यूज करना है, काउंट की वैल्यू क्या होगी, वो सब कुछ पता चल गया. एवरीथिंग you got that, what should be the count value and in which mode you will specify it. Now the important point is how you will get the addresses, क्योंकि काउंटर का एड्रेसेस और ये सब कुछ कैसे मिलेगा. सो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ. मिनट. ओके, यस, दिस डायग्राम. There is one decoder LS138. LS138 means your decoder. So in this decoder, ये जो decoder है उसमें यहाँ पे, so over here we are having address bus. ये एड्रेस बस यहाँ पे हम इनपुट में यूज कर रहे हैं, एंड दिस डिकोडर इज हैविंग सम आउटपुट. सो दिस आउटपुट्स आर कनेक्टेड लाइक दिस. ये जो आउटपुट है अल्टीमेटली, लुक एट दिस. मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड डिकोडर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. दिस इज अवर 3x8 decoder and it is having 3 input and it is having 3 control input, that is enable 1, enable 2 and enable 3. So वो सभी आपको पता है, that E1 bar, E2 bar and so that E3. So E1 bar, E2 bar and E3. So this is your E1 bar. This is E2 bar and this is E3. ये जो, and this is our address bits. So bit address bit कौन सा यहाँ पे address bits connected है. So bit 2, 3 and 4 are connected over here and bit 5 and 6 are connected over here. So 8085 की जो एड्रेस बस है उसमें से we are having A0 to A15 address lines. So out of this A0 to A15 address lines, how they are connected with this decoder. So 2, 3, 4 are connected over here. So if we will say that, so if we will provide 0, 0, 0 over here, then output of this decoder 1 will be selected. And then we will provide this output of 1 to chip selection of our peripheral device. So वो कौन सी peripheral device होगी. So there are there are total 8 outputs we can have. So जो पहला output है वो कौन सी chip selection में जाएगा. So it is going for 8251, 8255, sorry. This is for 8255. Then second is going to 8279, chip selection for 8279. Then third is going for again 82. जो थर्ड है वो किसके लिए जा रहा है, 8255. So 8255. Then again
This is for 8253, then 8251. This is again 8255. So there are total three 8255. Three 8255 है हमारे पास. So here this is a first one. This is a second one. This is a third. Fourth output is connected over here. Fifth output is connected over here. And sixth output is connected to this 8255. And 7 is connected to DAC. So what is this DAC? I will explain. Digital to analog converter. That is our next chapter. But all other pins, all other chips, you are able aware about it. So total we are having three 8255. 1, 2 and 3. तो उसको इनेबल करना है. अगर ये तीनों में से किसी एक का यूज करना है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाई करना होगा. सपोज इफ आई विल स्पेसिफाई एड्रेस. सो ये जो एड्रेस रेंज यहाँ पे है, ये यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप. ऑब्जर्व दिस एड्रेस रेंज. अगर आपकी एड्रेस बस में एड्रेस आएगा, उसमें ये आपको ये डिकोडर को एक्टिव करना है पहले तो. टू एक्टिव दिस डिकोडर, व्हाट विल बी द एड्रेस? ये दोनों क्या होने चाहिए? 00. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस? दिस इज इनपुट आउटपुट और मेमोरी. So that is connected. This is connected with E1 bar. This is connected with E2 bar, and this is connected with E3. So what should be the value of this? IO versus M bit. IO versus M bit की वैल्यू क्या होनी चाहिए? If you want to active this decoder. Am I audible? Are you able to answer me? Hello, students. Yes. मैं क्या बोल रहा हूँ? What is my question? This is a decoder. In this decoder, address lines are connected over here. So this is E1 bar, this is E2 bar, and this is E3 bar. E3 normal, not bar. E3 active high input. So यहाँ पे क्या इनपुट आना चाहिए अगर ये डिकोडर को आपको एक्टिव करना है तो? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस थ्री पिन? अभी ये तीन पिन के बारे में बात कर रहा हूँ. यस, 001. ओके. हाँ. यस. सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो दैट इज आई हैव रिटन ओवर हियर. यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? सो A4 and A5, sorry, A5 and A6 are connected with E1 bar and E2 bar, and this is connected with E3. So इसकी वैल्यू 1. So इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मीनिंग क्या है? दिस इज पेरिफेरल मैप इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन. सो आपको इंस्ट्रक्शन यूज करनी होगी इन एंड आउट. सो वी विल यूज इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन बिकॉज this pin is 1. Okay, so 5 and 6 bit, 5th and 6th bit will be always 0. उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? 0. इसको एक्टिव करने के लिए अब आप 2, 3 and 4, if you will provide this 2, 3 and 4 bit as a 000, then if you will provide this as a 000, then which output line is active? कौन सी आउटपुट लाइन एक्टिव होगी? Which output line is active? Output 1. And output 1 is connected with which chip selection line? कौन सी chip selection line के साथ connected है? It is connected with chip selection line 8255. So 8255 की chip selection line के साथ ये connected है. So this is active. So अगर ये active होगा तो इसका मीनिंग क्या है? 8255 will be activated. कौन सी 8255? फर्स्ट नंबर की 8255. सो इसमें 8255 में हमारे पास क्या होते हैं? पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी एंड कंट्रोल रजिस्टर.
if you can recall, then we are having 8255. So what are the addresses for this पोर्ट ए? पोर्ट ए का एड्रेस क्या होगा, पोर्ट बी का एड्रेस क्या होगा, पोर्ट सी का एड्रेस क्या होगा, एंड कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा? ये हमारी सिलेक्ट हुई, 8255 सिलेक्ट हो गई. अब इसमें यस, वी कैन स्पेसिफाई, वी कैन यहाँ पे बिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 फिक्स हो गए. कितने बिट फिक्स हो गए? बचे कितने बिट? A1, A0, A1, A0 and A7. So now remaining 3 bits are there. So if you will say that this is 00, आप यहाँ पे अब लिखोगे, पूरा एड्रेस लिखोगे A0, A1. If it is 00, if it is 01, if it is 10, and if it is 11, तो port A, port B, port C and control register. और A2 to A6 तो आपको यहाँ पे क्या मिल गए? A2 to A6 are 00 and A7 is don't care. So A7 पहले हम 0 कंसिडर करेंगे. So अब हमको मिलेंगे एड्रेस रेंज 00, 01, 02 and 03, and then we will consider A7 as a 1. So we'll get address range 80, 81, 82 and 83. Not 84, 83, 80, 81, 82 and 83. These are the addresses. Are you getting this? So अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको फॉस 8255 का यूज करके उसके पोर्ट सी का यूज करके आपको स्क्वायर वेव जनरेट करना है, ये डायग्राम मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. तो उसके बेस पे आपको एड्रेस फाइंड करता आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे एड्रेस फाइंड करोगे. ओके, सो सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर अवर 8279. सो 8279 के लिए भी वही है. सो 8279 पहले यहाँ से चिप सिलेक्शन होगा, and 8279 is also having read and data register and control register. Same way for 8255. We are discussing right now about 8253. हमारे लिए अभी क्या है, अभी ये जो प्रोग्राम हम करने वाले हैं उसमें हम ये दो यूज करने वाले हैं, 8251 and 8253. So 8251 and 8253. So पहले 8253 का मुझे एड्रेसेस चाहिए. 8253 is having counter 1, counter 2, counter 3 and control register. So I want addresses for this. ये सभी के एड्रेस मुझे चाहिए. Based on this diagram, you have to answer me. आपको आंसर करना होगा मुझे. Answer me this question. What will be the addresses? Addresses क्या होंगे? What are the addresses for counter 1, counter 2, counter 3 and control register based on this interfacing diagram? Yes, सौम्यदीप. एबी एड्रेस बस 7 इज ये जो एड्रेस बिट है वो डोंट केयर है. इसका मीनिंग आप पहले इसको 0 कंसीडर करोगे और एड्रेस डिसाइड करोगे, और फिर 1 कंसीडर करोगे और एड्रेस डिसाइड करोगे. सो बोथ एड्रेसेस आर वैलिड. इसका मीनिंग यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला है 8253. सो 8253 के काउंटर 1 के लिए आपको दो एड्रेस मिलेंगे. वन, यू विल गेट टू एड्रेसेस. सेम वे काउंटर 2 के लिए भी आपको दो एड्रेस मिलेंगे. काउंटर 3 के लिए भी आपको दो एड्रेस मिलेंगे, एंड कंट्रोल रजिस्टर के लिए भी आपको दो एड्रेस मिलेंगे. व्हाई? बिकॉज A7 इज डोंट केयर. सो दैट वी ऑलरेडी लर्न इन फर्स्ट सेशनल एग्जाम. दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिकोडिंग. पार्शियल डिकोडिंग हमने फर्स्ट सेशनल एग्जाम में स्टडी किया था. सो दोनों एड्रेस एक ही जगह पे मैप होंगे, दोनों एड्रेस एक ही कंसिडर होंगे, बट दिस इज मिरर एड्रेस और पार्शियल डिकोडिंग. ओके ओके, यस. सो व्हाट इज आंसर? 8253 में क्या आएगा?
8253 के जो काउंटर्स है उसका एड्रेसेस क्या होंगे? व्हाट आर द एड्रेसेस? नो, 04567 इज रॉन्ग आंसर. ऑब्जर्व दिस डायग्राम, ये डायग्राम आप ऑब्जर्व करो. इसमें 8253 पहले कहाँ पे कनेक्टेड है? 8253 is connected, 8253 is connected over here. This is output 1, this is output 2, this is output 3, this is output 4. So output 4 के साथ connected है. So output 4 को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना होगा? What should be the value of this? Yes, so correct answer is 0C, 0D, 0E and 0F. And if you will consider A7 equal to 1, A7 equal to 1, then A7 को 1 कंसिडर करोगे तो A7 इक्वल टू 1 कंसिडर करोगे तो एड्रेस रेंज क्या होंगे? यस, सो 8C, 8D, 8E एंड 8F. ओके, सो दिस आर द एड्रेसेस. सो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो. यहाँ पे ये एड्रेस रेंज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किए हुए है. 0C टू 0F एंड 8C टू 8F. ओके, सेम वे 8251 में क्या होगा? ये जो अभी हमने 8251 स्पेसिफिक स्टडी किया, तो 8251 के कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा एंड डेटा रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा? सो लेट मी गो टू दैट 8251. सो ये जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, सो A0, A0 के साथ जो C और D पिन है उसके साथ क्या कनेक्ट किया हुआ है? A0. सी डी पिन के साथ हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है? A0. सो व्हाट आर द पोर्ट एड्रेसेस? आपको यहाँ पे पोर्ट एड्रेस क्या मिलेंगे? कंट्रोल रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर के एड्रेसेस क्या मिलेंगे? सो यहाँ पे आप क्या कंसिडर करोगे? A1. A1 को क्या कंसिडर करोगे? सो A1 विल बी ऑल्सो कंसिडर एज अ डोंट केयर. सो नाउ two bits are don't care, A1 as well as A7. सो यहाँ पे कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा एंड डेटा रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा? 8251 के लिए, 8251 के लिए 8251 में, ओके लेट मी गो टू दैट डायग्राम. ये जो है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे 8251, दिस इज आवर 8251. So in this 8251, only A0 is connected with C और D pin, जो प्रीवियस मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था वैसे ही. बट सो A1 इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर. A1 कहीं पे कनेक्टेड नहीं है. A2, 3, 4 वो सब कहाँ पे कनेक्टेड है? सो वो सबको डिकोडर में कनेक्टेड है. सो इफ यू विल, वो ये जो डिकोडर है, ये जो डिकोडर है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी यहाँ पे कनेक्टेड है. 7 कहीं पे कनेक्टेड नहीं है. सो 7 हम डोंट केयर कंसिडर कर रहे थे. सो अभी बाकी कौन से बचे? A1 एंड A0. सो A0 इज कनेक्टेड विद C और D पिन ऑफ 8251. तो अब बाकी कौन सा बचा? A1. सो यहाँ पे A1 हम क्या कंसिडर करेंगे? डोंट केयर. सो व्हाट आर द एड्रेसेस? तो यहाँ पे कंट्रोल एड्रेस क्या होगा? कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा एंड डेटा रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा? सो यहाँ पे सिर्फ दो ही एड्रेस आएंगे, 10 एंड 11. बाकी के एड्रेसेस आप डोंट केयर कंसिडर करोगे तो टोटल जो एड्रेस एड्रेस मिलेंगे आपको
सो हमारे लिए तो सिर्फ अभी दो एड्रेस इंपॉर्टेंट है. 10 किसका एड्रेस होगा, कंट्रोल रजिस्टर का या डेटा रजिस्टर का? So 10 will be for data register, 11 will be for control register. इसके मिरर एड्रेसेस क्या होंगे? व्हाट आर द मिरर एड्रेसेस? आप यहाँ पे इसके मिरर एड्रेसेस क्या क्या लिख सकते हो? So you can write mirror addresses. 1 2 will be also your mirror address, and 1 3 is mirror address for this. Same way, अगर आप A71 कंसीडर करोगे तो ये क्या होगा? सो 90 एंड ये होगा 91, यहाँ पे 92 एंड 93. यू गेटिंग दिस? सो डेटा के लिए आप ये कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हो, कंट्रोल के लिए आप कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंटरफेसिंग. ये इंटरफेसिंग चेंज हुआ है, अब प्रोग्रामिंग आपका शुरू होगा. तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको क्या करना होगा? व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट. सो आपको पहले 8253 इनिशियलाइज करना होगा, फिर 8251 को इनिशियलाइज करना होगा. दिस इज योर सीरियल पिन. RS232 सीरियल केबल जो मैंने आपको बताया था. सो इसमें 25 पिन्स है, एंड देयर इज, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू प्रोसेसर देन देयर शुड बी क्रॉस कनेक्शन. सो यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन होगा. सो ये मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा. केबल मेरे पास है, सो केबल का मैंने वीडियो कैप्चर किया हुआ है. सो आई विल शो दैट वीडियो ओवर हियर. ओके, सो I will demonstrate you two practical now, two program. First program, that is, I will call it as a loop back program. So ये प्रोग्राम में मैं क्या करूंगा? Okay, let me open that figure for you. Okay, just a minute, 1 minute. Okay, okay, is this figure is visible to you? ये फिगर है, विजिबल है आपको? ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है? व्हाट आई हैव डिड ओवर हियर, दिस इज वन किट. ये एक किट है आपकी, एंड दिस इज अ सीरियल पोर्ट which is controlled by 8251. ओके, तो इसका जो पिन नंबर 2 है, व्हाट इज अ पिन नंबर 2 जनरली वी आर यूजिंग? पिन नंबर 2 इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग. सो यहां से डेटा निकलेगा और वापस कहां पे जाएगा? इट विल गो अगेन ओवर हियर. सो आई एम यूजिंग this 8251 as a transmitter also, as a receiver also. यहीं से मैं डेटा सेंड करूंगा और इसी में वापस मैं रिसीव करवाऊंगा. So this program I will call it as a loop back program. So ये पहला loop back program हम पहला लिखेंगे. So first I will demonstrate you this loop back program. Okay, so पहले ये loop back program मैं आपको demonstrate करूंगा, but उसके लिए पहले हम steps लिखेंगे. First we will write steps for this loop back program. So let me open the notepad. Okay, so what we will do first? Okay, so step number 1. What is the step number 1? We need to initialize 8253. In which mode? 8253 का काउंटर 1 है, काउंटर 1
वो हमको मोड 3 में इनिशियलाइज करना होगा. दैट इज अवर स्टेप नंबर 1. वहां से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा. एंड देन इसके लिए ये स्टेप 1 के लिए आपको प्रोग्राम क्या करना होगा. व्हाट इज योर इंस्ट्रक्शन. आपकी इंस्ट्रक्शन क्या होगी और इसमें जो डेटा लोड करना है वो कितने बिट बाइट का डेटा है. 1 बाइट ओनली. सो वी वांट टू लोड ओनली 1 बाइट. 1 बाइट इन काउंटर 1. सो नाउ गिव मी द कंट्रोल वर्ड. कंट्रोल वर्ड क्या आएगा. व्हाट आई विल राइट ओवर हियर. एमवीआई ए. यहाँ पे क्या आएगा. व्हाट विल बी द आंसर. एमवीआई ए. व्हाट विल बी द वैल्यू. यहाँ पे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट मी गिव यू दैट कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट ओवर हियर. मैं आपके लिए ये फॉर्मेट यहाँ पे ओपन रखता हूँ. ओके, दिस इज अ फॉर्मेट. लुक एट दिस. दिस इज अ फॉर्मेट फॉर कंट्रोल वर्ड ऑफ 8253. 8253 का कंट्रोल वर्ड का ये फॉर्मेट है. सो क्या आएगा. आप नोट पेन का यूज करोगे और मुझे आंसर दोगे. काउंटर 1 यूज करना है. काउंटर 1 यूज करना है. उसमें सिर्फ एक ही बाइट ऐड करना है. सो इज इट 96 और 56. क्या आएगा. 56. It will be 56. Yes. So that is our first instruction. MVIA 56. 56H. And then इसको out करेंगे. Where we will write it out into the control register of 8253. तो अभी हमने 8253 के control register का एड्रेस क्या derive किया था. What address we have derived for control register of 8253. सो 8253 का कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस है वो भी हमने यहाँ पे डिराइव किया. अभी हमने डिस्कस किया था. सो 8253 का कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस होगा 0F. ओके. सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन MVI A 56 out it to. Okay, 1 minute. Okay, I will later on I will write it in 80585 simulator. Okay, so out it to 0F. Out it to 0FH. Okay. So this is first step. Now second step. Load your counter 1 with appropriate count value. So count value हमको क्या मिली थी. What is the count value we have counted over here recently. अभी हमने यहाँ पे count value क्या count की थी. किट की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से count की value आपकी क्या होनी चाहिए. What should be the count value. 50H. So we'll load 50H. So MVI next instruction is step number 2 is load your count 1. So MVI A then 50. And now where we will write it. Out it to. What is the address. Address क्या होगा. एड्रेस क्या होगा. कौन से काउंटर में. काउंटर 1 में ये राइट करना है ना. तो काउंटर 1 का एड्रेस क्या है. 0D. सो 0D out it to 0DH. ओके. ओके दैट्स इट. ओके नेक्स्ट. सो ये हो गया 8253 के लिए. ओके हाँ यस सॉरी VIA 50. ओके सो ये हो गया स्टेप 1. अब स्टेप 2. 8251 को इनिशियलाइज करना है. सो 8251 में आप कैसे इनिशियलाइज करोगे. हमने मोड वर्ड क्या डिजाइन किया था.
What will be the mode word we have designed? यहाँ पे हमने अभी मोड वर्ड जो डिजाइन किया था वो क्या डिजाइन किया था? based on this parameter we have designed the mode word. अगर board rate ये चाहिए, अगर आपको डेटा बिट्स इतने चाहिए, so we have designed it at CE. Yes, so we will load MVI A CE H and then out it to what will be the address? Address क्या होगा? यहाँ पे एड्रेस क्या होगा? डेटा रजिस्टर में राइट करेंगे या कंट्रोल में राइट करेंगे? 8251 को इनिशियलाइज करना है. So first we have to initialize it mode word. So 11. Yes, very good. So out it to 11H. Okay. Then this is mode word. अब command word. इसको as a transmitter use करना है. So what will be the command word? Command word का format क्या है? This is the format of command word. इसको as a transmitter use करना है. You want to use this as a transmitter. So this bit we want to use it as a transmitter as well as receiver क्योंकि loop back use करना है. So इसको ट्रांसमीटर भी यूज करना है, रिसीवर भी यूज करना है, तो ये दोनों बिट 1 होने चाहिए. बाकी सभी बिट्स आप क्या करोगे? 0. So what will be this value? ये वैल्यू क्या होगी? 05. ओके. और इफ यू वांट टू रीसेट द फ्लैग्स, आप ये फ्लैग्स को रीसेट करना चाहते हो तो ये बिट 1 रख सकते हो. तो आप 05 या 15 कुछ भी लोड कर सकते हो. बोथ आर इक्वल, दोनों सेम होंगे. देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम. 05 विल बी आल्सो ओके, 15 will be also okay. So I will write 15. So MVI A 15, then out it to 11H. Okay. So this everything is okay. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? We have initialize step number 1, initialize 8253. Step number 2, initialize 8251. Up to this, do you have any doubt? Is it clear? Okay, now our actual programming start. We will first check whether the transmitter is ready or not. पहले हमको क्या करना होगा? ट्रांसमीटर रेडी है या नहीं है वो चेक करना होगा. तो उसके लिए हमको स्टेटस रीड करना होगा. वी नीड टू रीड द स्टेटस. सो स्टेटस रीड करने के लिए आपको क्या लिखना होगा? इन 11H एंड देन यहाँ पे सपोज मैं एक दे देता हूँ, इसको एक लेबल दे देता हूँ S1. So in 11H and then I will write ANI 01H and JZ to S1. Okay, so this is checking the status. These 3 instructions are for checking the status of your loop back. ये जो आपका ट्रांसमीटर रेडी है या नहीं है ये चेक करेंगे. Once the transmitter is ready, we will load our data. So MVI A, whatever data you want to send. Suppose मैं भी यहाँ पे सेंड करूंगा FF, just for example. यहाँ पे आप कोई भी डेटा लोड कर सकते हो, वो डेटा आपका सेंड होगा. एंड देन आउट इट टू, इसको सेंड कहाँ पे करेंगे? व्हाट विल बी द एड्रेस? डेटा रजिस्टर. सो आउट इट टू 10H. तो गेटिंग दिस और नॉट? ये प्रोग्राम आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? This says we have sent the data सेंड कर दिया. ओके, नाउ डेटा सेंड हो गया. अब रिसीवर के लिए
अब जो होगा वो प्रोग्राम रिसीवर के लिए होगा. So we are using right now, we are discussing right now loopback program. तो यही 8251 सेंडर भी होगा और वही रिसीवर होगा. अ, जब दूसरा प्रोग्राम होगा उसमें हम क्या करेंगे, वी विल राइट टू प्रोग्राम. वन प्रोग्राम इज फॉर सेंडर. सो ये हो गया वो सेंडर का प्रोग्राम. यहां तक जो प्रोग्राम होगा वो सेंडर का प्रोग्राम होगा. एंड सेकंड प्रोग्राम विल बी फॉर रिसीवर. सो उसमें चेंज कहाँ पे होगा, यहां तक स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 विल बी सेम, but change will be over here. But right now the program which we are discussing, that is a program for look back, जिसमें एक ही 8251 सेंडर एंड रिसीवर है, तो सब कुछ यहाँ पे ही आएगा. ये कुछ भी डेटा है, ये MVI AFF, that is any data, you can load any data over here. Just for example I have write FF. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई भी डेटा लिख सकते हो. सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 65, कोई भी डेटा 25H, कुछ भी, it is not related to any, your data is there, whatever data bit you want to send. So ये सेंड होगा. एक्चुअली आपने यहाँ पे जो भी स्पेसिफाई किया होगा वो एक्चुअल वो सेंड होगा. अब नेक्स्ट जो होगा वो रिसीवर के लिए. ओके, तो रिसीवर के लिए पहले वैसा ही आपको 8251 को अब यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपने इनिशियलाइज किया हुआ है. अब आपको सिर्फ स्टेटस चेक करना होगा. यू नीड टू जस्ट चेक द स्टेटस वेदर योर रिसीवर इज रेडी और नॉट. तो उसके लिए वापस इन 11H, नाउ ANI विथ साथ रिसीवर रेडी है या नहीं है वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, whether the receiver is ready or not, what we need to do, कौन सा बिट चेक करना होगा यहाँ पे, स्टेटस रजिस्टर का कौन सा बिट चेक करना होगा, स्टेटस वर्ड. जब रीड करोगे तो स्टेटस वर्ड चेक करना है आपको. सो यू नीड टू चेक दिस ट्रांसमीटर रेडी और नॉट. सो वी आर चेकिंग दिस. अब रिसीवर रेडी है या नहीं है उसके लिए D1. सो ये फॉर्मेट्स आपको याद रखने हैं. You need to remember this format. So yes, ANI with 02. मैं ये बार बार आपको एग्जाम में ये फॉर्मेट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा. दिस इज प्रैक्टिस, you need to do it. Okay, ANI with 02 JZ to S2. अगर रेडी नहीं होगा तो हम ये लूप में चलते रहेंगे. अगर रेडी होगा तो अब हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे इन 10H. सो आपको डेटा मिल जाएगा, एक्यूमुलेटर में आपको डेटा मिल जाएगा. जैसे ही इन H करोगे आपको डेटा एक्यूमुलेटर में मिल जाएगा. एंड देन रिटर्न RST1. दिस इज द प्रोग्राम. ये डेटा आपको, तो आपको जो डेटा सेंड किया था आपने वो आपको किस में मिलेगा, एक्यूमुलेटर में. उसको आप कहीं पे टेम्पररी स्टोर करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, स्टोर दिस डेटा टू द मेमोरी लोकेशन, लेट्स गेट 2300H. सो ये मेमोरी लोकेशन 2300H में आपका डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. सो दिस इज लुक बैक प्रोग्राम. ओके, सो ये प्रोग्राम मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके बताऊंगा. दिस प्रोग्राम. सो इस प्रोग्राम को पहले आपको कन्वर्ट करना होगा हेक्स कोड में, और फिर वो हेक्स कोड में यहाँ पे आपको कैसे मैंने लिखा है वो यहाँ पे वीडियो ऑन करके आपको बता रहा हूँ. लेट मी ओपन द वीडियो. ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू हैव एनी क्वेरी इन प्रोग्राम? प्रोग्राम में कोई क्वेरी है? Students, please reply so I can start video. I can go further. Is it clear? So first program is for loop back. जो क्लियर क्लियर लिख रहे हैं
उसको मैं अभी आता हूं मैं वापस आपके पास. आई विल आस्क क्वेश्चंस. सो सोच समझ के क्लियर लिखना. ओके. ओके. तो ये जो किट है आपके सामने, आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो. आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द कोड. मैंने कोड यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर कर दिया है. सो वो कोड मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है. सॉरी. सॉरी. लेट मी जस्ट अगेन प्ले दिस. सो आई हैव रिटर्न दिस कोड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 2100. ये किट में 2100 लोकेशन से मैंने ये कोड लिखा हुआ है. सो उसको किट के थ्रू एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे हमको क्या करना होगा. वी नीड टू प्रेस रन. Then we need to specify the memory location and then we need to execute, press execute. So it will execute program. So program execute हो गया. तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको. So what will be the output. आउटपुट क्या मिलेगा. So यहाँ पे जो सीरियल पोर्ट है वो मैंने लुक बैक में कनेक्ट किया हुआ है. सो डेटा सेंड होके वापस इसके ही एक्यूमुलेटर में आपको डेटा मिलेगा. You will get the data inside accumulator again. So let me show that data. Let me show you the result. So रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर का कंटेंट चेक करना है. तो क्या करेंगे, हम रजिस्टर प्रेस करेंगे. सो प्रेस रजिस्टर एंड देन ए. सो यहाँ पे मैंने डेटा सेंड किया था ए बी. सो वी आर रिसीविंग डेटा ए बी इन अवर एक्यूमुलेटर. सो आई एम चेंजिंग इट द प्रोग्राम. मैं दूसरे प्रोग्राम में वापस नया एक वीडियो ओपन कर रहा हूँ इन विच आई एम शोइंग यू द प्रोग्राम. ये जो पूरा प्रोग्राम मैंने अभी आपको डिस्कस किया वो प्रोग्राम यहाँ पे जो है. ओके 1 मिनट. जस्ट अ मिनट. Yes. So I think it is visible over here. This is a loop back. यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है. मैंने यहाँ पे लूप बैक का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है. सो लेट मी प्ले दिस वीडियो. सो जो प्रोग्राम मैंने स्टोर किया हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. सो मेमोरी में जाने के लिए यहाँ पे सेट 2100 मेमोरी लोकेशन से हमारा प्रोग्राम है. सो प्रोग्राम ये जो 3E, एक्चुअली 3E क्या है, हेक्स कोड है. किसका. इट इज हेक्स कोड फॉर अवर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. आप अगर MVI A56 का हेक्स कोड देखोगे तो MVI का हेक्स कोड क्या है, MVI A का 3E. देन नेक्स्ट सेकंड इंस्ट्रक्शन है MVI A, so 3E56. That is your complete instruction, first instruction. Now second instruction is out it to 0F. So out का hex code है D3 and this is 0F. So likewise this is a whole program. जो हमने अभी लिखा है ये उसका पूरा वही प्रोग्राम है बट वो हेक्स कोड के फॉर्म में है. So this is a 3E50, then D3 0D. Now this is a MVI ACE.
Now out it to the 1 1. So ये out it to the 1 1. Now MVIA 1 5. Now out it to the 1 1. So आप मैप करते जाओगे तो यही प्रोग्राम है. This is the program. Now we are over here. So in 1 1. So अब in 1 1 का कोड आएगा. DB 1 1. So that is in 1 1. Now we will perform ANI 0 1. So E6 0 1. So that is ANI 0 1. And this is CA. Jump if 0. Now we need to specify over here. Loop यहाँ पे लेबल स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन का लोकेशन देना होगा. So that is the location is 103. So वैसे हम ये पूरा प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो प्रोग्राम यहाँ पे वही प्रोग्राम है. So this is the same program. So यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हमने डेटा क्या सेंड किया. So we have sent this data. तो यहाँ पे जो ये देखो what I have sent this प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे क्या सेंड किया था AB. तो हमको रिसीव क्या हुआ था what we have received AB. यहाँ पे मैंने AB सेंड किया तो आपको AB रिसीव हुआ था. ओके. सो वो ये एड्रेस आप याद रखो. मैं ये नेक्स्ट वीडियो में ये एड्रेस पे मैं ए बी की जगह पे आपको कुछ वैल्यू चेंज करके वापस एग्जीक्यूट किया मैंने प्रोग्राम. वो वीडियो भी आपको बता रहा हूँ. कौन सा एड्रेस है ये 2118. 2118 पे मैं यहाँ पे वैल्यू मॉडिफाई करूंगा और वापस प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा. So that video is also there. So I will play that video also. So this is a complete program जो मैंने आपको explain किया. Okay. So last instruction. This is our last instruction. That is RST1 और return instruction. RST1 भी लिख सकते हो आप और return भी लिख सकते हो दोनों में. So यहाँ पे मैंने RST1 लिखा है, उसका हेक्साडेसिमल कोड है. So आप हेक्स कोड में लिखोगे तो 2100 से लेके 2124 पे आपका प्रोग्राम स्टोर है. Okay. So this is our program for loopback. ये loopback का प्रोग्राम है. 2104 तक हमारा 2124 तक. ओके. ओके. सो नाउ ये जो वीडियो है उसमें मैं लुपबैक कौन सा एड्रेस था 2118. सो मैं देखो 2118 पे जाके अब आपको डेटा मॉडिफाई कर दूंगा. फर्स्ट आई विल मॉडिफाई द डेटा. सो आई विल मॉडिफाई डेटा. लेट्स से दैट आई हैव मॉडिफाइड द डेटा over here 56. And now I am resetting. Now I am running the program. Run 2100 starting of the program. Execute. So what should be the data which should be there in accumulator. accumulator में क्या रिसीव हुआ होना चाहिए. मैंने क्या सेंड किया अभी यहाँ से what I have sent 56. So what should be value you should receive. So accumulator में आप देखोगे तो 56. मैंने यहाँ पे STA वाला कोड नहीं लिखा है. अगर आप STA 2300 करोगे तो 2300 लोकेशन या कोई भी मेमोरी लोकेशन में भी वही डेटा आपको मिलेगा. So that is the program for loopback. Is it clear? Do you have any doubt in this loopback program? So as assignment, you need to write this two program. First program is this loopback program. तो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे मैंने आपको करवाया. ये जो पूरा प्रोग्राम है वो आपको पता चल गया. ये पूरा प्रोग्राम वही है. The same program is that. और ये सब कैलकुलेशन कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये सब कुछ यहाँ से लिखना है. So you need to write down this. So that is your experiment number 9 we are doing. So ये सब कुछ लिखना है. ये कैलकुलेशन कैसे हुआ. ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है. No need to draw this diagram. But yes, यहाँ से सब कुछ लिखना है. क्या कीट की फ्रीक्वेंसी क्या है. आप अभी
आप हैंड रिटन लिखोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हैंड रिटन करोगे तो ही आपको ये सब कुछ पता चलेगा। आप डायरेक्टली वर्ड में लिखोगे तो उतने अच्छी तरीके से आपको पता नहीं चलेगा। सो आई प्रिफर, और यू मस्ट राइट इट हैंड रिटन, हैंड रिटन ही होगा। ओके। ये केबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये नो नीड टू ड्रॉ दिस केबल। ये पिन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेप्स है वो आपको यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अभी मैं आपको ये स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। अब हम ये प्रोग्राम करेंगे। दो 8085 किट को कनेक्ट करेंगे और एक किट में से डेटा सेंड करेंगे और दूसरे में डेटा रिसीव करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? लुक बैक प्रोग्राम अभी हमने एक ही किट का यूज किया है, उसी को सेंडर बनाया, उसी को रिसीवर बनाया। इज इट क्लियर? Look, due to this limitation, due to this time limitation, I cannot show you it on any simulator. जो सिम्युलेटर हमारे पास है उसमें अनफॉर्चुनेटली ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 8251 है नहीं। सो अभी के लिए मैं आपको ऐसे वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई एम okay. So now for second program for sender and receiver. So let me open that diagram first of all, that video. प्रोग्राम में सिर्फ थोड़ा ही चेंज आएगा। अब ये प्रोग्राम, अभी जो हमने सिंगल प्रोग्राम किया था, अब वो दो सेपरेट प्रोग्राम हो जाएंगे। नाउ दैट विल बी टू सेपरेट प्रोग्राम। इसमें ये जो केबल कनेक्टर हमने यूज किया हुआ है, इट इज दिस क्रॉस केबल। ये जो केबल है, इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो पिन नंबर 2 पे कौन सा कलर है? रेड। पिन नंबर 3 पे कौन सा कलर है? व्हाइट। पिन नंबर 7 पे कौन सा कलर है? ग्रीन। दिख रहा है आप सभी को? इज इट विजिबल? ओके। सो दूसरे एंड पे ये जो कनेक्टर है, उसके दूसरे एंड पे हम रेड कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? हम रेड विल बी कनेक्टेड ऑन पिन नंबर 3 एंड व्हाइट विल बी कनेक्टेड ऑन पिन नंबर 2, क्योंकि हमको क्रॉस केबल कनेक्शन करना होगा, नल मोडेम कनेक्शन इंप्लीमेंट करना होगा यहाँ पे। सो दूसरे एंड पे मैं जा रहा हूं अभी। सो लुक एट द अदर एंड। यहाँ पे ये थोड़ा निकल गया अभी, बट फिर भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो रेड वायर कनेक्टेड है। लुक एट दिस, रेड वायर इज कनेक्टेड ऑन पिन नंबर 3। पिन नंबर व्हाइट वाला वायर है अभी निकल गया है, बट वो हम कनेक्ट करेंगे। सोल्डरिंग करना बाकी है यहाँ पे, बट वो सोल्डरिंग करेंगे कौन सी पिन के साथ? पिन नंबर 2 के साथ। ये तो डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने एक ओपन रखा है। मेरे पास एक रेडीमेड वायर है जो मैंने यूज किया है प्रैक्टिकल के लिए, बट आपके डेमोस्ट्रेशन के लिए मेरे पास जो दूसरा वायर था वो मैंने ओपन करके आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया हुआ है। सो दूसरा केबल जो था वो यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन, और जो पिन नंबर 7 है उसमें हमने कौन सा कनेक्ट किया हुआ है? ग्रीन, सो ग्राउंड। ओके, now let me open that program. Let me first of all open the, yes. So look at this. This is a sender. This particular kit we will use as a sender. This we will use as a sender. इसको हम एज अ सेंडर यूज करेंगे एंड दिस विल यूज एज अ रिसीवर। इसको हम एज अ रिसीवर यूज करेंगे। सो यहाँ पे एक कोड लिखेंगे सेंडर का, यहाँ पे कोड लिखेंगे वो रिसीवर का कोड। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू। सो ये जो केबल है, देखो यहाँ पे जो है ये केबल के थ्रू कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है टू
100, आप कोई भी मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने 2100 से प्रोग्राम लिखा हुआ है, एंड द प्रोग्राम विल बी द सेम, बट उसमें थोड़ा चेंज होगा। अब ये पहले प्रोग्राम समझ लेते हैं। तो प्रोग्राम में क्या होगा, नाउ यू हैव टू क्रिएट, you have to write two program, one program in kit number 1 and second program in kit number 2. So let me open a new file. Let me give you the program 1. Program 1, that is for sender. Sender का प्रोग्राम क्या होगा? तो sender के प्रोग्राम में ये स्टेप नंबर 1 एज इट इज रहेगा, स्टेप नंबर 1 एज इट इज रहेगा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 भी एज इट इज रहेगा। हम इसको नहीं, स्टेप नंबर 2 में एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? व्हाट विल बी द चेंज? व्हाट विल बी द चेंज? वेयर विल बी द चेंज? स्टेप नंबर 2 में चेंज कहाँ पे आएगा? इसको अब सिर्फ हमको ट्रांसमीटर यूज करना है, दोनों यूज नहीं करना है। प्रीवियस केस में हमको ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, वी वांट टू यूज इट एज अ बोथ, नाउ वी वांट टू यूज इट एज अ जस्ट ट्रांसमीटर। तो चेंज क्या आएगा? तो कहाँ पे चेंज आएगा? वेयर इट विल बी द चेंज विल बी एट दिस इंस्ट्रक्शन। Instead of 15, what you need to write? 15 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 15 की जगह पे आप क्या लिखोगे? What are your answers? Yes, 01 और 11. Yes, आप कुछ भी लिख सकते हो, 01 भी लिख सकते हो, 11 भी लिख सकते हो। So let me write it 11 और let me write 01. कोई भी आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। Both is valid. Both are valid. Okay. So ये एक चेंज आएगा। अब जो प्रोग्राम होगा वो स्टेटस का, सो स्टेटस चेक तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे स्टेटस चेक भी आएगा। सो वी विल यूज द सेम स्टेटस चेक प्रोग्राम। सो स्टेटस चेक का प्रोग्राम, देन वी विल लोड द डेटा, MVI। नेक्स्ट डेटा लोडिंग वाला प्रोग्राम होगा, वो भी आएगा। सो MVI A, whatever data you want to send and out it to 10H. So and then last instruction. So that's it. यहाँ पे ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब सेंडर, हमने डेटा सेंड कर दिया। So once you will execute this program, sender will send the data. Sender data send कर देगा। अब दूसरा प्रोग्राम होगा वो रिसीवर का। So now program 2, that is for receiver, वो हम दूसरी किट पे लिखेंगे। रिसीवर का प्रोग्राम होगा ओके। सो उसमें भी क्या आएगा? स्टेप 1 वैसा ही रहेगा, क्योंकि दूसरी किट में भी सेम ही है। काउंटर 1 तो सेम ही है। काउंटर 1 तो हम एज अ, दोनों में ये सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में ट्रांसमीटर का जो रेट है वही रिसीवर का रेट होना चाहिए। आप जितनी रेट से ट्रांसमिट करोगे उतनी रेट से ही हम रिसीव करेंगे। सो दिस विल रिमेन एज इट इज। अब यहाँ पे स्टेप 2 में चेंज क्या आएगा? व्हाट विल बी द चेंज? विल बी द चेंज इंस्टेड ऑफ 01, 01 की जगह पे क्या आएगा? 02। यस, वेरी गुड, बिकॉज वी वांट टू यूज इट एज अ रिसीवर। इसको अब ऐसा रिसीवर यूज करना है। ओके, so we'll use it as a receiver. Sorry, not 02, 02 नहीं आएगा। आप यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे 04 आएगा। यस, क्योंकि जो आपका कमांड वर्ड है, वेयर इज दैट PDF फाइल? यस, ओवर हियर। कमांड वर्ड है, उसमें थर्ड बीट इंडिकेट कर रहा है। कमांड वर्ड में थर्ड बीट इंडिकेट कर रहा है रिसीवर। So you need to make this bit as a 1. So it is 100.
So it is 02 is wrong answer. So what should be the value? 04. So ऐसा आप अगर ध्यान नहीं रखोगे तो ये मिस्टेक होगा. Okay. So yes. So यहाँ पे क्या आएगा? 04H and then out it to 11H. Okay. Now next there will be the receiver program. अब क्या होगा next? रिसीवर का प्रोग्राम. सो जो रिसीवर के लिए यहाँ पे लिखा था वो आएगा. सो रिसीवर का लूप एज इट इज आएगा. क्या आपका रिसीवर रेडी है या नहीं है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल रीड द स्टेटस वर्ड. और स्टेटस वर्ड में कौन सा बीट चेक करेंगे? सेकंड बीट. सो सेकंड बीट विल इंडिकेट वेदर योर रिसीवर इज रेडी और नॉट. इफ इट इज नॉट रेडी वी विल जंप अगेन ओवर हियर. यहाँ पे ही जंप करते रहेंगे. ओके. सो once your receiver is ready we will receive the data. So data receive करने के लिए in and then 10 and then we can store it over here sta2300. यहाँ पे मैंने एक रूटीन कॉल करवाया है इन दिस प्रोग्राम विच आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग यू. उसमें मैंने एक रूटीन कॉल करवाया है. वो इनबिल्ट सपोर्टेबल है. हमारी जो ट्रेनर किट है उसमें एक रूटीन अवेलेबल है. वो डिस्प्ले के लिए यूज होता है. आपकी 7 सेगमेंट एलईडी पे कुछ अगर आपको डिस्प्ले करना है तो ये रूटीन आप कॉल कर सकते हो. इसका एड्रेस है, its address is 1 minute, its address is I think 03CE. let me check the address. सो वो रूटीन मैंने यहाँ पे कॉल करवाया है. वो एड्रेस लिख के मैंने वो रूटीन चेक करवाया है. सो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल कॉल दैट पर्टिकुलर रूटीन. डिस्प्ले का रूटीन है उसका एड्रेस. whatever I will explain you while executing program में वो एड्रेस वहां पे लिखा हुआ है 03C शायद है. okay. so this is the our receiver program. so यहाँ पे जो program 1 है so that program I have written over here. so program 1 अभी यहाँ पे लिखा हुआ है and program 2 is written on this kit. so this is 2 and this is 1. so पहले हम क्या करेंगे? first what we need to do, first whether we will execute first transmitter or we will execute first receiver. पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ट्रांसमीटर का कोड एग्जीक्यूट करेंगे, पहले रिसीवर का कोड एग्जीक्यूट करेंगे? which you need to execute first, whether you will execute transmitter first or receiver first. if you will execute transmitter first, अगर आप पहले ट्रांसमीटर का एग्जीक्यूट करोगे और तब आपने रिसीवर में कुछ प्रोग्राम ही नहीं किया हुआ है तो क्या होगा? अभी यहाँ से डेटा सेंड हो जाएगा बट तभी आपका ये तो रिसीव रेडी ही नहीं होगा. आपने इसमें कुछ इनिशियलाइज ही नहीं किया होगा. so that you need to first execute this receiver program. so ये पहले listening करता रहेगा. so ये पहले आपको execute करना होगा. so first you need to execute receiver so that it will be ready. इसका इनिशियलाइजेशन होता जाएगा और वो वेट करेगा, लूप में चलता रहेगा. कौन सी लूप में? ये जो लूप है उसमें. इट विल इन दिस पर्टिकुलर लूप, इट विल रिमेन इन दिस पर्टिकुलर लूप. बट ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. अगर आप ट्रांसमीटर का कोड पहले लिखोगे तो क्या होगा? ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आपका जो डेटा होगा वो सेंड हो जाएगा एंड योर प्रोग्राम विल बी स्टॉप. नो वन इज देयर टू रिसीव करने के लिए कोई नहीं होगा. सो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल एग्जीक्यूट रिसीवर प्रोग्राम एंड देन वी विल एग्जीक्यूट ट्रांसमीटर प्रोग्राम. फिर हम ट्रांसमीटर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे. सो जस्ट फॉर ये मैं अभी आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ. दिस इज द प्रोग्राम विच आई एम शोइंग यू. ये ट्रांसमीटर का प्रोग्राम है. यहाँ पे अभी हम डेटा, मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम क्या मैंने लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ. तो ये जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसका हेक्स कोड यहाँ पे लिखा हुआ है.
सो हेक्स कोड इज देयर. ओके, अभी ये डेटा क्या, मैंने यहाँ पे क्या डेटा लिया हुआ है, ए बी. आई एम सेंडिंग द ए बी में यहाँ से सेंड कर रहा हूँ. आई विल मॉडिफाई इट एंड देन डेमोस्ट्रेट यू ऑल्सो. मॉडिफाई करके भी डेमोस्ट्रेट करूंगा. सो ए बी यहाँ से सेंड होगा. अभी मैं सपोज ये अभी मॉडिफाई कर रहा हूँ. सपोज आई एम मॉडिफाइंग इट डी डी. तो अभी डी डी डेटा सेंड होगा आपका. सो ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है अभी, ये एग्जीक्यूट नहीं किया मैंने. वो प्रोग्राम मैंने अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, जस्ट आई हैव स्टोर इट इन मेमोरी. नाउ आई हैव कम टू दिस रिसीवर. रिसीवर का प्रोग्राम. ओके, सो वो मेमोरी में स्टोर किया है सिर्फ, अभी यहाँ पे रिसीवर में. सो रिसीवर में भी सेम 2100. मेमोरी लोकेशन दोनों में डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम मेमोरी लोकेशन होगा. कहीं पे भी आप प्रोग्राम स्टोर कर सकते हो. सो फर्स्ट, सो सेम प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको रिसीवर का प्रोग्राम एक्सप्लेन किया, उसका हेक्स कोड यहाँ पे है. सो सेम प्रोग्राम इज देयर. ओके, सो लास्ट इंस्ट्रक्शन विल बी रिटर्न और RST1. लास्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी वो क्या होगी, रिटर्न और RST1. या यस, जो मैं आपको बोल रहा था CD दिस. सो 6E03. सो जो पूरा एड्रेस है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था 036E, दैट इज द एड्रेस फॉर दिस डिस्प्ले रूटीन. सो वो आपको ये सेगमेंट में कुछ डिस्प्ले करके देगा. आपके एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका when this routine will be called. Okay, so this is a program for receiver, and last instruction, that is a 76. So that is the last instruction. Okay, so now I will execute receiver first. This is a sender and this is a receiver, so we will execute receiver first. So पहले receiver का program execute कर रहे हैं हम. So execute करने के लिए run then 2100 memory location and then press execute. So यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, अभी स्क्रीन पे ऊपर क्या है, E. सो अभी ये वेटिंग मोड में है. आपकी आपकी ये किट है वो इनफाइनाइट लूप में चल रही है. दिस इज इन इनफाइनाइट लूप. रिसीवर की किट है वो. अब मैं जा रहा हूं सेंडर किट पे, ट्रांसमीटर पे. सो ट्रांसमीटर में भी मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूं 2 1 run then 2100. ऑब्जर्व व्हेन आई विल प्रेस, ऑब्जर्व ओवर हियर. यहाँ पे ये आप यहाँ पे जो मेरे सर्कल किया हुआ है यहाँ पे क्या आ रहा है वो ऑब्जर्व करना. यहाँ पे जो ब्लू मार्क में अभी कर रहा हूँ वो आप ऑब्जर्व करना. एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट यू नीड टू ऑब्जर्व. जैसे ही मैं यहाँ पे ये एग्जीक्यूट प्रेस करूंगा, यहाँ से डेटा सेंड होगा, इसको डेटा रिसीव होगा और वो डेटा यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा. लुक एट इट. सो एज सुन एज आई विल एक्सप्रेस, जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट प्रेस करूंगा, लुक एट दिस, यहाँ से डेटा सेंड हो जाएगा और यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो गया, DD. सो दिस इज वी हैव सेंड द डेटा सीरियली. ये जो डेटा होगा वो सीरियली सेंड होगा किसके थ्रू, 8251 के थ्रू, और यहाँ पे रिसीव होगा एक्यूमुलेटर में. और जब पूरा डेटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा DD. So ultimately we are, this is a program for sending and receiving 16-bit data serially. 16-bit का डेटा DD है वो हेक्स कोड. सो DD अल्टीमेटली 16-bit का डेटा होगा आपका. So this is program for your 9th experiment. Is it clear? Do you have any doubt in this? So you need to write this both program. First program, that is a loopback program, and the second program is transmitting the program data from one kit to another kit. ये आपको लिखना होगा, ये दोनों प्रोग्राम आपको लिखने होंगे.
Is it clear? Any doubt in this? Any doubt related to this serial communication, this kit? अभी हमने सिर्फ 16 बिट का डेटा ही ट्रांसमिट किया. सपोज ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर मेमोरी में स्टोर किए होंगे, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे वन बाय वन ट्रांसमीटर कर हम ट्रांसमिट करेंगे और वन बाय वन हम रिसीव करेंगे. ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? लेट मी टेक अटेंडेंस वंस अगेन. अब किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेरी related to this serial communication? ये कमांड वर्ड, मोड वर्ड, सब कुछ आपको याद रखने होंगे. So the devices which we have learned till this particular point, all the devices we have learned. Now there will be no any more device. अब सिर्फ एक आएगा analog to digital and digital to analog converter. But all the peripheral devices, all the interfacing chips are completed. So आप एक बार लिस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा सभी के कमांड वर्ड, सभी के मोड वर्ड जो होंगे वो आपको याद रखने हैं. प्रोग्रामिंग कैसे करना है, क्या करना है. सो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? वी हैव स्टार्टेड विथ 8279. दैट इज द फर्स्ट वन. इफ यू वांट टू मेक लिस्ट तो हम लिस्ट बना लो एक. 8279 से हमने स्टार्ट किया था. व्हाट इज इट? इट इज फॉर इंटरफेसिंग कीबोर्ड एंड डिस्प्ले. देन वी हैव डिस्कस. फिर हमने क्या डिस्कस किया था? देन वी हैव डिस्कस. कैन यू रिप्लाई मी इन चैट? 8279 के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस 8255. So 8255, that is general purpose programmable peripheral interfacing, PPI. So PPI के बाद हमने डिस्कस किया था 8254 और you can say that 8253. इसको आप 8254 भी बोल सकते हो, 8253. Both are known as same counter or timer IC. Then we have discussed 8251. What is the use of 8251? तो अभी अभी किया. इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? 8259. दैट इज इंटरप्ट कंट्रोलर. देन 8259 के बाद हमने डिस्कस किया 8237 और यू कैन से दैट another name is 8257. That is also known as DMA controller. And then we have discussed this today, 8251. So that is serial USART, universal synchronous asynchronous receiver and transmitter. So you need to learn this each and every command word, mode word, programming of this whatever topics we have discussed for individual peripheral this particular IC. Is it clear? Any doubt till this particular point? So now there will be no more any IC. इसके अलावा और कोई IC हम स्टडी नहीं करेंगे. Now there will be only analog to digital and digital to analog converter will be there remaining from our microprocessor syllabus. Controller इसके बाद हम start करेंगे. Okay. So our today's lab is over. You can leave the meeting now. आप मीटिंग लीव कर सकते हो.